Dear students, we have started with amino acid and proteins in previous lecture. Or we had been explaining about the amino acid. Its introductory part as well as the structural part and classification all have actually completed in previous lecture. Now we are going to start today the second part of the amino acid, that is what are the names of biologically active amino acids as well as the physiological types of amino acids. Not only that, how amino acids are combined with each other to give the different types of compound as well as how the proteins are obtained. And in that course, firstly we have to write the name of physiologically active or biologically active amino acids. Now come to that point. I have already told you that 30 amino acids are found in nature, and out of them only 30 are biologically active. And we have to know the biologically active amino acids. We have already given you that the general formula for alpha amino acids are generally written as RCH NH2 COH. So this is the general formula for alpha amino acids, and now we have to know the 20 amino acids which are biologically active and are very important for the protein formation. So now we have to know the name, which complete name and structure of the amino acid, which completely depends upon the value of R. So I am giving you first is glycine, and here the value of R is H only. Second is alanine, in which R is equal to CH3. Third is valine, in which R is equal to CH3, CH, CH3. Fourth is leucine, and leucine, the value of R is equal to CH3, CH, CH3, CH2. Fifth is isoleucine, and its formula is written like this: CH, CH3, CH2, CH3. Sixth is phenylalanine, where the value of R is equal to C6H5. Seventh is methionine, in which the value of H is CH2, CH2, S, CH3.
ट्राइप्टोफेन। In which the value of R is iodine group, that is like this. एक साथ साथ हम लोग एक बात और बताते चले। हमने आपको बताया था कि जितने भी 20 एमिनो एसिड्स हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शन या प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन को रिप्रेजेंट कराने में या पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट कराने में 3 लेटर्स सिंबल का उपयोग करते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के केस में इसे इंडिकेट करने के लिए हम लोग सिंगल लेटर का उपयोग करते हैं। तो वह भी साथ साथ हम लोग देखते चले। ग्लाइसिन 3 लेटर सिंबल, और 1 लेटर सिंबल। और भी साथ साथ विचार करते चले हम लोग। 3 लेटर सिंबल ग्लाइसिन के लिए GLY है, और सिंगल लेटर है G। एलानिन के लिए ALA, और सिंगल लेटर में A। वायलिन के लिए शुरू का 3 लेटर BAL, और सिंगल लेटर में B। ल्यूसीन के लिए LEU। आइसोल्यूसीन के लिए ILE, और ये I। फिनाइल एलानिन के लिए PHE, 3 लेटर सिंबल, और सिंगल लेटर सिंबल में F। मेथिओनिन के लिए MET, और सिंगल लेटर में M। ठीक है, ऐसे ही ट्राइप्टोफैन के लिए TRP, ट्राइप्टोफैन, और इसके लिए सिंगल लेटर में W। ठीक है, ऐसे ही जगह की कमी के कारण दोनों को साथ साथ एक ही जगह पर लिखेंगे। तो ये ट्राइप्टोफैन 8वां। 9वां प्रोलीन। प्रोलीन अपने आप में एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, इसके लिए आपका वैल्यू नहीं होगा, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल का ही फॉर्मूला होगा, और कंप्लीट मॉलिक्यूल का फॉर्मूला इस प्रकार से है।
3 लेटर सिंबल है इसका PR, और सिंगल लेटर सिंबल है P। 10वां है सेरी। आर का वैल्यू इसमें सेरी के केस में है CH2OH, और वी लेटर सिंबल है ACR, और सिंगल लेटर सिंबल है S। सिस्टीन। इसके लिए R का वैल्यू है CH2SH, और इधर है CYS, और सिंगल लेटर सिस्टम है C। एस्पाराजीन। आर का वैल्यू है और ASN 3 लेटर सिंबल है, और सिंगल लेटर सिंबल में है N। 13 है, इसके लिए आर का वैल्यू है CH2 CONH2। ग्लूटामीन। आर का वैल्यू है CH2 CH2 CONH2। GNN 3 लेटर सिंबल, और इसमें है Q। सिंगल लेटर सिस्टम में 14वां है थ्रेओनीन। TH। इसके लिए R का वैल्यू है CH OH CH3। 3 लेटर सिंबल है THR, और सिंगल लेटर सिंबल है T। टाइरोसिन। यह पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइन। आर का वैल्यू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइन, और TYR, और सिंगल लेटर सिंबल है Y। एस्पार्टिक एसिड। CH2 COOH, AST 3 लेटर सिंबल, और सिंगल लेटर सिंबल में D। 17 है ग्लूटामिक एसिड। इसमें R का वैल्यू है CH2 CH2 COOH GLU, और सिंगल लेटर सिंबल है
E। 18वां है लाइसीन। इसमें R का वैल्यू है CH2 होल 4 NH3 प्लस, और इसके लिए 3 लेटर सिंबल है दिस LYS, और सिंगल लेटर सिस्टम है K। 19वां है आर्जिनिन। इसमें R का वैल्यू है ARG, R का वैल्यू है CH2 होल 3 NH C डबल बॉन्ड NH NH2। 3 लेटर सिंबल है ARG, और सिंगल लेटर सिंबल है R। और 20वां है हिस्टीडीन। हिस्टीडीन के लिए R का वैल्यू है इमिडाजोल डेरिवेटिव के रूप में आता है CH2। और 3 लेटर सिंबल है इसका HIS, और सिंगल लेटर सिंबल है H। तो ये हो गए हमारे टोटल एमिनो एसिड्स जो बायोलॉजिकली एक्टिव है और जिनकी जरूरत हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं, या प्रोटीन के एक्सप्लोरेशन में, प्रोटीन के स्टडी में हम लोग करते हैं। ये अध्ययन के देखा गया कि इस 20 एमिनो एसिड्स में करीब करीब क्या 10 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज होते रहते हैं, और 10 ऐसे हैं जो बाहर से फूड स्टफ के रूप में सप्लाई किए जाते हैं। तो जो बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज होते हैं वैसे एमिनो एसिड को हम लोग कहते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, जबकि जो इसेंशियल एमिनो एसिड है जो हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं करता है उसको फूड मटेरियल के साथ, फूड स्टफ्स के साथ बॉडी के अंदर भेजा जाता है, वैसे एमिनो एसिड इसेंशियल एमिनो एसिड का। तो हमको जानना है इसेंशियल एमिनो एसिड कौन है और नॉन इसेंशियल कौन है। तो हम इसी में जो ये चार्ट दे चुके हैं उस पर हमें स्टार मार्क कर देंगे, इसका अर्थ है कि वह इसेंशियल एमिनो एसिड है, और जो स्टार मार्क नहीं है इसका अर्थ है कि वह नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। तो ये है वैल्यू, तीसरा नंबर स्टार से मार्क कर दिया गया। चौथा नंबर ल्यूसीन, ये स्टार मार्क है। 5वां है आइसोल्यूसीन, ये भी स्टार मार्क है। 6ठा है फिनाइल एलानिन, ये भी स्टार मार्क है।
इसके बाद थ्रेओनीन, ये लाइसिन, ये स्टार मार्क है, आर्जिनिन, ये स्टार मार्क है, हिस्टीडीन, ये स्टार मार्क। कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये 10 हो, 2 2 4 1 5 5 1 6 3 9, एक और है, सॉलिड जो फुल मॉलिक्यूल के रूप में है। इतने भी स्टार पार्ट है, ये सब एक्चुअली में है तो साथ ही 3 और सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। वो सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड में हो गया प्रोलीन, सेमी एसेंशियल में हो गया ये ल्यूसीन, साथ ही साथ मेथियोनीन, ट्राइटोफैन, ये सब हमारे सेमी इसेंशियल में हो गए। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 थ्रेओनीन 7 और ये 3 10। इसमें है ये एक ये 2 और एक ल्यूसीन, ये 4 हो गए। ये 3 हो गए जो सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं। तो ये जो टोटल स्टार मार्क है 10, वह तो हो गया इसेंशियल एमिनो एसिड कैटेगरीज में, जिसमें से 7 तो निहायत ही आवश्यक है जो फूड स्टफ के द्वारा सप्लाई करते हैं, और रिमेनिंग जो 3 बच गए स्टार मार्क वह सेमी इसेंशियल कहलाते हैं। कभी कभी खुद से फूड के द्वारा भी भेजना पड़ता है और कभी कभी अपने आप ही सिंथेसाइज हो जाता है, इसलिए इसे सेमी कहते हैं। और रिमेनिंग जितने बच गए जो स्टार मार्क नहीं है वह नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं जो बॉडी के अंदर अपने आप सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स हैं जो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं और जो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। ये एमिनो एसिड्स मिलकर ही प्रोटीन की संरचना करते हैं, और हम बता भी चुके हैं पिछले क्लास में कि 20 टाइप्स के प्रोटीन सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो कितना कॉम्प्लेक्सिटी है भरा हुआ एमिनो एसिड के साथ या प्रोटीन सिंथेसिस के साथ, ये आप इसी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें सेमी एसेंशियल, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की परिभाषा के बारे में, और तब उससे हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो आप जो अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। एक्चुअली में ये भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन ही है कि इस कैरेक्टर के आधार पर कि जो बॉडी के अंदर अपने आप सिंथेसाइज होते हैं, इसे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं, और जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं उनको फूड स्टफ के माध्यम
इसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं। तो कौन कौन है इसेंशियल, कौन कौन है नॉन इसेंशियल या कौन कौन सेमी इसेंशियल है, इसकी जानकारी हमको इस चार्ट से लग चुकी है। इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। परिभाषा का हम लोग पहले विचार कर लें। इसेंशियल एमिनो एसिड्स such amino acids which are not synthesized in our body but body requires so it is supplied to our body through foodstuffs are called essential amino acid. As per example, e.g., valine, leucine, isoleucine, phenylalanine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, arginine, and histidine are essential. Non-essential amino acid non-essential amino acids, such amino acids which are synthesized inside the body are known as non-essential amino acids. Such amino acids which are synthesized inside our body are called non-essential amino acids.
given in table except one star marked amino acids are actually non-essential So I have given you a complete idea regarding the 20 amino acids, and these 20 amino acids consist 10 amino acids as essential amino acids that is supplied to our body through foodstuffs, whereas the remaining 10 amino acids which are synthesized inside our body are known as non-essential amino acids. Well, friends, now I think everything is clear. Now come to another point. First, you pause your video and write it. I have already given you the characters of amino acids. These amino acids are more or less soluble in water, but not completely. The structural formula of the amino acid says that it consists of NH2 group as well as COH group both, and they do not remain in the free form. So come to the point. The structural formula for amino acid is always represented by writing amino group from left hand side. So in this way it is represented. We see here that carboxylic group has placed in right hand side, whereas NH2 group is present in left hand side. So this is the way for writing of amino acid, and the in where amino group is written is termed as N-terminal. So this is termed as N-terminal, or in other words you may say that N-terminal is always written in left hand side and carboxylic group is in right hand side, so it is called C-terminal. C-terminal. So C-terminal is written in left hand side, right hand side, and N-terminal in the left hand side. So this is the way for writing of amino acids. Now this amino acid consists of one NH2 as well as carboxylic group, and they do not remain in the free form, because carboxylic group has tendency to ionize. So the formula will exist like this: COO minus plus H plus, like this. Since basic group is also present in this molecule, and basic group is due to NH2 group in which N nitrogen has one lone pair of electrons, so it will attract H plus and it will remain in the form of NH3 plus CHR and COO minus. So the amino acid is always represented like this. So both ions are present in molecule. Nitrogen attains positive charge and carboxylic group attains as negative charge.
It means that they form internal salt. Because H ion from acid goes to nitrogen atom by attraction from lone pair of electron present in nitrogen, so it forms internal salt, and this type of internal salt is called deuterion. Internal salt, and internal salt is represented known as deuterion. So this type of process in amino acid, which happens automatically by losing H plus from carboxylic group and accepting H plus by NH2 group, so that this type of internal salt is formed, that is deuterion is formed. And this type of process, the formation of deuterion, that is internal salt, is named as deuteration process. Deuteration. So this is a type of process in which deuterion, that is internal salt, is formed. Now this deuteration may happen in all such compounds where this type of acidic and basic group both are present in the molecule. So acidic group will release H plus ion, and that H plus ion will be accepted by basic group, and this type of internal salt will be formed. So they are having plus and minus charges. So this plus charges and minus charge suppress each other. So when it is placed in electrical field, they will not move towards any of the electrodes, because we know that if molecule has positive charge, then it will move towards cathode, and if it has negative charge, then that end will move towards a positive electrode, that is anode. But in this case, both type of charges are present here, so it is electrically neutral. They will not move towards any of the electrode. This is with internal salt, that is deuterion is electrically neutral. But when acid is added in deuterions, let us suppose that we are supplying H plus ion to this solution where deuterion is present, then H plus will go to negative charge and it will form this type of ion only, NH3 plus CHR COOH. So now we see that acid group is generating here. So this solution must be acidic in character, and since it is acidic in character and it has positive charge, so when it is placed in electrical field, it will move towards cathode, and this type of movement of electrode, this type of movement of this positive ion charge, positively charged ion towards cathode is called cataphoresis. अरे हम लोग ये कह रहे हैं कि एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, एमिनो ग्रुप भी है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा क्योंकि एसिड है तो H प्लस लूज करना इसकी टेंडेंसी है, H प्लस लूज करेगा और जो ही H प्लस लूज करेगा तो NH2 ग्रुप उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फलस्वरूप इस टाइप का आयन फॉर्मेशन हो जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों आयन्स बन जाएंगे। इसका अर्थ है कि एक सॉल्ट हो गया और एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चार्ज बनते हैं, इसलिए ऐसे सॉल्ट को इंटरनल सॉल्ट कहते हैं और इंटरनल सॉल्ट का दूसरा नाम है deuterion। इसे deuterion भी कह सकते हैं और यह क्रिया जिसमें deuterion फॉर्म करता है deuteration कहलाता है। तो ये कोई बात नहीं है कि एमिनो एसिड में ही ये प्रोसेस होगा, वैसे सारे कंपाउंड में ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसमें एसिड और बेसिक दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो एसिड और बेसिक दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम लोग इंटरनल सॉल्ट कहेंगे, लेकिन इंटरनल सॉल्ट में तो दोनों आयन प्रेजेंट है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में डालेंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन
जब इसमें हम थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है वह कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर का हो जाएगा और केवल पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे, इसलिए कहेंगे कि ये कैथोड की ओर मूव करता है, अर्थात इस प्रोसेस को कहेंगे कैथोफोरेसिस। साइमल्टेनियसली अगर हम इसमें अल्कली डाल दें, OH माइनस डाल दें, तो ये OH माइनस इसमें का H प्लस लेके वाटर रिलीज करेगा और ये हो जाएगा NH2 CHR COO माइनस। अब यहाँ देख रहे हैं कि केवल नेगेटिव चार्ज बच गया है और ये अल्कली डालने पर बना है, इसलिए ये सॉल्यूशन अल्कलाइन नेचर का होगा। सो दिस इज आवर अल्कलाइन फॉर्म और नेगेटिव चार्ज बच गया तो ये कहाँ मूव करेगा? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, मतलब एनोड की ओर जाएगा। और ऐसे प्रोसेस को कि जब ऐसे आयन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में डालेंगे एनोड की ओर मूवमेंट होगा, इसलिए ऐसे प्रोसेस को एनोफोरेसिस कहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं एमिनो एसिड्स में, मतलब एमिनो एसिड एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेंगे, बेसिक कैरेक्टर भी शो करेंगे, लेकिन इन जनरल दे विल रिमेन एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल बिकॉज ड्यूटर आयन इज फॉर्म्ड। तो हम लोगों ने कैरेक्टर का स्टडी कर लिया। अब है कि यही एमिनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और आपस में जुटेंगे, तो दो एमिनो एसिड मिला, डाइपेप्टाइड बन गया। फिर तीन, अगर इस दो को फिर तीसरे से मिलावे, तीन मॉलिक्यूल मिल गया तो ट्राइपेप्टाइड, चार मिल जाए टेट्रापेप्टाइड, पांच मिल जाए पेंटापेप्टाइड, 10 तक मिल सकता है तो डेकापेप्टाइड तक बनते हैं। और अगर 10 से ज्यादा एमिनो एसिड्स मिलेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड ही अगर इसकी संख्या हजारों में हो तो ये मिलकर जो रिजल्ट बनाते हैं वैसे कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन्स कहते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर मास ये एमिनो एसिड्स मिलते मिलते, एमिनो एसिड सिंपलेस्ट यूनिट है, जब ये दो मिला तो डाइपेप्टाइड, तीन मिला ट्राइपेप्टाइड, चार मिला टेट्रापेप्टाइड, 10 तक मिलेगा तो डेकापेप्टाइड तक नाम पढ़ते हैं। लेकिन 10 से जो ही ज्यादा हुआ और इसकी संख्या 1000 तक पहुंची तो इसे हम लोग कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो 10,000 मॉलिक्यूलर मास तक अगर किसी पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। लेकिन जो ही 10 लाख से ऊपर बढ़ा, 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया मॉलिक्यूलर मास, तब हम उसको कहेंगे प्रोटीन्स। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है। और हम तो बता भी चुके थे प्रोटीन की संख्या कितनी होगी, तो 20⁻20। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने वेराइटीज के प्रोटीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो हम लोग केवल आज लास्ट करते हैं एमिनो एसिड का इस पॉइंट पर कि ये आपस में जुटते कैसे हैं और पॉलीपेप्टाइड बन कैसे जाता है। और कल से तब हम लोग इसी पॉलीपेप्टाइड जिसका मॉलिक्यूलर मास 10 लाख या ऊपर होता है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसका हम लोग अटैचमेंट जो 20 एमिनो एसिड का चार्ट आपको हम दे चुके थे वह पहले याद रखिए और इसके आधार पर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और आपको हम बता ही चुके हैं कि एमिनो एसिड्स जितने भी हैं उस सारे एमिनो एसिड्स को जब भी लिखते हैं तो नाइट्रोजन तरफ से शुरू करते हैं, मतलब नाइट्रोजन टर्मिनल को हमेशा लेफ्ट की ओर लिखते हैं और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल को हमेशा राइट की ओर लिखते हैं। और लिखते हुए तब हम रिएक्शंस कराते हैं और इनको आपस में जोड़ के पेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पेप्टाइड इज नथिंग, एक्चुअली में एक एमिनो एसिड का NH2 दूसरे एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्शन करता है और आपस में जुटते हैं। इसी बॉन्ड को, इसी जुटने को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो ये अगर हम जान जाए तो किसी भी पेप्टाइड का नेमिंग हम कर सकते हैं और हमको नेमिंग आ जाए तो प्रोटीन स्ट्रक्चर को बताना आसान हो जाए। तो क्या है हम लोग इस पर देखें, जैसे ग्लाइसिन
रिएक्शन किया, इसको जोड़े दूसरे एमिनो एसिड से, एलानिन से। फार्मूला आपको मालूम है, चार्ट आपको दे चुके हैं। ग्लाइसिन का फार्मूला लिखिएगा तो क्या होगा, NH2 CH COOH, ये ग्लाइसिन, दिस इज ग्लाइसिन। और एलानिन का फार्मूला लिखिएगा तो क्या होगा, NH2 CH CH3 COOH, ये हो गया एलानिन। तो केवल फर्क क्या हुआ, यहाँ H है और यहाँ CH3। अब ये जुटेंगे तो इस एलानिन का N टर्मिनल और ग्लाइसिन का कार्बन टर्मिनल आपस में रिएक्शन करेंगे। इसका OH, इसमें से एक तो H लेकर आपस में जुट जाएगा। जुटकर क्या निकालेगा, तो वाटर निकला, H2O। अब ये पोर्शन तो खत्म हो गया, ये दोनों आपस में जुट गए तो रिजल्ट हो गया NH2 CH CO NH CH CH3 COH। फिर क्या देख रहे हैं कि अब ये जो बना रिजल्ट, उसमें शुरू का NH2 तो बचा रह गया और लास्ट वाला जो एमिनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बचा रह गया। लेकिन बीच वाले जो पोर्शन थे जो ये जुटा है आपस में, इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। चूंकि दो मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, इसलिए इसे कहते हैं डाइपेप्टाइड। हम समझते हैं कि ये क्लियर हो गया आपको। अब अगर इस पर तीसरा मॉलिक्यूल से मिला दे, फिर मान लिया हम ग्लाइसिलेज से, इस पर सपोज कीजिए वायलिन से हम रिएक्शन कराते हैं। वायलिन का फॉर्मूला है CH3, फॉर्मूला इसका लिखिए NH2 CH CH CH3 CH3। हम कोई नई बात नहीं दे रहे हैं, ये सारा चार्ट पे आपको हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं। तो अब इसमें आइए, फिर इस एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये NH2 से रिएक्शन करेगा। फिर इसका OH, इसमें से H लेकर वाटर निकालेगा और ये पोर्शन फिर यहाँ जुट जाएगा। तो हमारा बन गया NH2 CH CO NH CH CH3, फिर CO NH NH CH CH CH3 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 COOH। ये यहाँ जुड़ा हुआ है एक साथ टेस्ट, कितना बार हो गया। तो यहाँ दो मॉलिक्यूल मिला था तो नाम हो गया डाइपेप्टाइड। यहाँ तीन मॉलिक्यूल मिल गया तो इसका नाम हो गया ट्राइपेप्टाइड। अगर ऐसे ही कोई और मिल जाए फिर इसमें, मान लीजिए ग्लाइसिन ही मिल गया, तो फिर यहाँ पर रिएक्शन होगा, फिर यहाँ पर बढ़ेगा तो टेट्रापेप्टाइड। फिर जो बना उसमें फिर एक एमिनो एसिड कंबाइन करें तो पेंटापेप्टाइड। इस टाइप से नाम देते चले जाएंगे। तो इन कॉमन हो गया। फॉर्मूलाज के रूप में नाम कैसे पढ़ेंगे, ये हमको जानना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आइए, ये तो था ग्लाइसिन, ये था एलानिन, तो ये बना, ये रिजल्ट बना। इस डाइपेप्टाइड जो बना उसका नाम क्या होगा, तो ग्लाइसिन है शुरू में, तो इसको हम लोग लिखते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, तो इसमें से INE हटा दीजिए, लास्ट का 3 लेटर जो भी है एमिनो एसिड लास्ट में तो हमेशा INE होगा, तो हटा दीजिए और उसमें YL जोड़ दीजिए, ग्लाइसाइन। क्या जुड़ा, एलानिन। अब इसमें एलानिन जो दूसरा है उसका पूरा नाम लिखिए, एलानिन। तो इस डाइपेप्टाइड का नाम हो गया ग्लाइसाइल एलानिन। अब आइए, यहाँ तो 3 मिला है, ग्लाइसिन, एलानिन और ये वायलिन, क्या नाम होगा, तो यहां से स्टार्ट कीजिए, ग्लाइसाइल। ये तो था एलानिन, अब ये भी पूरा नहीं होगा, एलानिन है,
तो इसमें से फिर INE हटाइए और इसमें भी YN ही जोड़िए, और लास्ट वाला जो बच गया वैलिन वो पूरा का पूरा लिख दीजिए। हमें हमेशा लास्ट वाले को पूरा लिखते हैं। ये क्या हो गया, ग्लाइसाइड, एलानाइड, वैलिन। इस ट्राइपेप्टाइड का नाम इस प्रकार से हो गया। ऐसे ही टेट्रापेप्टाइड, तो हम लोग नाम भी दे सकते हैं, तो बहुत आसान है, केवल लास्ट एमिनो एसिड का पूरा नाम लिखाएगा और शुरू वाला जितना भी एमिनो एसिड होगा उसमें का INE हटा के YN ऐड करते हुए लिखते चले जाइए। जैसे यहाँ पर दिए ग्लाइसाइड एलानिन, लास्ट वाले का पूरा नाम, यहाँ पर दिए ग्लाइसाइड एलानाइड वैलिन। अगर फिर ग्लाइसिन यहाँ जुड़ जाए तो ग्लाइसाइड एलानाइड ग्लाइसाइड वैलिन, स्ट्रक्चर नाम बढ़ाते चले जाइए। लास्ट वाला एमिनो एसिड हमेशा पूरा पूरा नाम के द्वारा इंडिकेट होगा। ये तो क्या सिंपल वे में पढ़ने का तरीका। और हम तो बताए हैं आपको 3 लेटर सिंबल भी, 3 लेटर सिंबल के आधार पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम सिंगल लेटर सिंबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग में फायदा होगा, वहाँ पर पूरा नाम लिखकर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो असुविधा होगी। इसलिए हम लोग सिंगल लेटर का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग के केस में करते हैं, जहाँ भी सिंथेसिस संबंधी बातों का अध्ययन करेंगे वो। तो आइए हम लोग पहले 3 लेटर से, ग्लाइसिन का 3 लेटर सिंबल आपको चार्ट में भी जस्ट दे चुके हैं। इसके लिए क्या था, GLY। एलानिन के लिए क्या है, ALA। तो ये जो बना कुछ नहीं करना है, GLY हाइफन ALA। ये हमेशा ध्यान रखना है कि स्टार्ट जिससे करेंगे वह कैपिटल लेटर से। इसका क्या होगा, इसका होगा GLY ALA और तब इसमें VAL, ये बीच में हाइफन दे दीजिए, वही जैसे तो GLY हाइफन ALA हाइफन PAL। अगर सिंगल लेटर से इसी को रिप्रेजेंट करना है, इसका सिंगल लेटर सिंबल क्या है, G, इसका सिंगल लेटर सिंबल क्या है, A, तो ये सिंगल लेटर क्या होगा, GA। ये इसका सिंगल लेटर सिंबल क्या होगा, इसी आधार पर GAV। ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन। ये तो हम किसी भी सिंबल का उपयोग करके 3 लेटर सिंबल या सिंगल सिंबल का उपयोग करके हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। या तो पूरा नाम पढ़िए ट्रेडिशनल फॉर्म में, तो वह इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अगर सिंबल के रूप में पढ़ना चाहें तो 3 लेटर सिंबल का इस्तेमाल करें तो इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, या अगर सिंगल लेटर सिंबल का उपयोग करें तो वह भी किया जा सकता है, इस आधार पर पढ़ सकते हैं। इसलिए कहीं भी लिखा रहे जैसे GA, तो ये आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि सिंगल लेटर सिंबल के द्वारा इंडिकेटेड है, मतलब ग्लाइसिन और एलानिन जुड़ा हुआ है, मतलब ग्लाइसिनाइल एलानिन है, तो आप फॉर्मूला झट लिख जाइए कि ये होगा इसका फॉर्मूला GA का। ऐसे ही GA भी है, तो आप समझ रहे हैं क्या है, फॉर्मूला झट लिख जाइए इसको जोड़ के। तो इस प्रकार से आपके अपने स्टडी को डेवलप कराना है, और डेवलप करा के जितना ही क्लियर कंसेप्ट रखिएगा उतना ही समझने में सुविधा होगी, और हम लोग तब आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग एमिनो एसिड्स कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अब बच गया कि प्रोटीन्स, तो हम तो पहले ही कह चुके हैं कि प्रोटीन का सिंगल स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का सिंपल यूनिट है कौन, एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड का डिटेल्स आप जान गए। अब इसी एमिनो एसिड को हमें जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, सीक्वेंसिंग क्या होगा ये जानना है, और कैसे जुटेगा इस या तो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वे में, या हम लोग 3 लेटर सिंबल के रूप में या सिंगल लेटर सिंबल के रूप में जोड़ते हुए मॉलिक्यूल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, माने प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं। किसी भी प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने का डिफरेंट तरीका है जो हम लोग कल अपने लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, या तो एसिड से, या अल्कली से, या बेस से, या किसी शॉर्ट सॉल्यूशन से, किसी से, या एंजाइम से हाइड्रोलिसिस
सिंथेसाइज करेंगे। तो ये सिंथेसाइज होकर पहले देगा प्रोटियोसिस, ये प्रोटियोसिस फिर ब्रेक करेगा तब हमको देगा पेप्टोन, और ये पेप्टोन जब फिर हाइड्रोलाइज के दौरान, हाइड्रोलिसिस के दौरान ब्रेक करेगा तो हमको देगा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का आप समझ रहे हैं, बता चुके हैं कि जब 10 से ज्यादा एमिनो एसिड मॉलिक्यूल आपस में जुटे तब वैसे रिजल्ट को हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, और जब पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तब बनेगा एमिनो एसिड। तो देख सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम लोग अभी एमिनो एसिड्स के डिस्क्रिप्शन पर पहुंचे हैं। एमिनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड तक पहुंच चुके हैं, अब पॉलीपेप्टाइड से पेप्टोन पर बढ़ेंगे, प्रोटियोसिस पर बढ़ेंगे, तब हम प्रोटीन्स पर आ सकते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अर्थात कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।